Okay. So good morning, students. Better now in this video we shall discuss our chapter, that is manufacturing industries, chapter number 6, manufacturing industries. Okay. And the topic we are going to discuss today, topic we are going to discuss today is better the fertilizers industry. The fertilizers industry. Fertilizer industry. Okay. In this chapter we had earlier deducted this topic, but now this topic is also included in this video. So because in some previous examination this topic was also included, so that's why I'm also discussing this topic. Earlier in the previous video we had already discussed about aluminium smelting and chemical industries. I think you have seen my previous videos also. In the previous video we had already discussed the chemical smelting industry and the aluminium smelting industry, and in this video we shall discuss the fertilizer industry on page number 75, in your textbooks. So please take out chapter number 6, manufacturing industries, and the topic fertilizer industry. Okay, now beta देखो topic है fertilizer industry. Fertilizer industry, you all know that it is mostly, though it is a chemical industry, fertilizer industry is also a chemical industry, but this fertilizer industry is mostly related to the agriculture sector. This fertilizer industry is mostly related to the agriculture sector. Related to the agricultural sector. How it is related to the agriculture sector? Because mostly the fertilizers are used in the agriculture sector for the growing of the betterment of the crops. ठीक है, क्रॉप्स को ज्यादा बेटर तरीके से उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. तो दैट्स व्हाई fertilizer industry is an industry. It is one of the manufacturing industries, but this manufacturing industry is related to the agriculture sector. This manufacturing industry is related to the agriculture sector, and that's why it is again a very important industry of India. Very important industry of India. Because why very important industry? Because India is an agricultural country. इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री, और जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हो वहां पर क्रॉप्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है. और जब क्रॉप्स अच्छी कैसे होंगी? जब उनको प्रॉपरली फर्टिलाइजर्स उपलब्ध होंगे. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ agricultural dominated country. India is an agricultural dominated country. That's why this agriculture industry is very important industry of India. Okay, next number 3. Next, देखो बेटा, the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, that is mainly यूरिया. ठीक है, अब इंडिया में ज्यादातर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है आमतौर पे इसमें क्या होता है, mostly it is concentrated to the fertilizers like यूरिया. अब इंडिया में ज्यादातर ना यूरिया की प्रोडक्शन होती है, उसके अलावा और उसके अलावा कौन कौन से हैं? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट्स. ठीक है, यूरिया ऑल्सो the fertilizers like ammonium phosphate, and the phosphatic fertilizers, ammonium phosphate and phosphatic fertilizers. ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लो. phosphatic fertilizers. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट द क्वेश्चन प्लीज. Write a short note on the fertilizer industry in India. Write a short note on the fertilizer industry in India. उसके बाद ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिखो, फॉर 3 मार्क्स. उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, राइट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो.
Which are the important, या ऐसे को name the important fertilizers, name the important fertilizers that are produced in India, for 1 marks. Name the important fertilizers that are produced in India for 1 marks. ठीक है, तो ये कौन सी, इसका आंसर में क्या है, इंडिया में ज्यादातर कौन से फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए जाते हैं, यूरिया, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट एंड दिस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ये सारे क्या है इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड इंडिया. बट there are certain fertilizers also that are imported from outside because these are not produced in India. देखो, the third one, that is potash, is entirely imported from, as the country does not have any reserves of the commercially usable potash. ठीक है, नंबर 4 लिख लो इसका. potash is mostly imported from the outside countries as India does not have much reserves of phosphates. As India does not has much reserve of potash. I'm sorry, for potash. ठीक है, तो इसीलिए पोटाश. एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा फॉर 1 मार्क्स. नेम द fertilizer that is mostly imported from the outside nations by India. Name the fertilizer that is mostly imported from the outside countries by India. And why? ये भी लिखो, and why. Answer is potash. And why it is important? Because India does not have much reserves of potash. इंडिया के पास पोटाश के बहुत बड़े रिजर्व्स नहीं है. दैट्स वाई हमें पोटाश जो है आउटसाइड कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है. अनलाइक द फर्टिलाइजर्स लाइक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम. ठीक है, ये इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, बट इसको हमें ज्यादातर बाहर से मंगवाना पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट यार है पूरा इसमें. अच्छा, ओके. बेटा ये मैं रब कर रहा हूं, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, पोटाश तो कर लिया आपने. पोटाश और पोटाशियम कंपाउंड्स, ये भी लिख लो इसके. और पोटाशियम कंपाउंड्स ऐसे लिखो, और पोटाशियम कंपाउंड्स. ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं पूरा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट. चलो उसके बाद बच्चों हाँ देखो बेटा, जो इंडिया की जो पोटाशियम इंडस्ट्री है, नंबर 5 यहाँ पॉइंट बन जाएगा. जो इंडिया की इंडिया की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ना, इंडिया की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है आमतौर पे किसके इर्द गिर्द घूमती है? अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स. ठीक है, देखो द पोटाशियम इंडस्ट्री द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया is mostly concentrated
is mostly concentrated over the potassium over the fertilizers that are nitrogenous, over the nitrogenous fertilizers like यूरिया, ठीक है। ये जो आपने यहां वाले पॉइंट देखा था ना, इस पॉइंट में आप देख सकते हो मोस्टली इट इज कंसंट्रेटेड टू द फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। यूरिया क्या है बेटा? यूरिया इज अ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। यूरिया इज अ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर मतलब कि क्या मतलब, ये जो यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि ना सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने में ज्यादा मदद करता है। आपने सभी ने साइंस में पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा कि ना आमतौर पे क्रॉप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको मिनरल जो मतलब चाहिए होता है, सॉरी जो सबसे इंपॉर्टेंट उनको जो चाहिए होता है उसमें से मिट्टी में से जो फसलों को ग्रो करने में मदद करता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो ये यूरिया जो है सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई हम लोग यूरिया को क्या बोलते हैं? द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। और हमारे देश की इंडस्ट्री जो है, आमतौर पे यूरिया जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स के इर्द गिर्द घूमती है, बिकॉज इसकी डिमांड, इन यूरिया जैसे जो फर्टिलाइजर्स है इनकी डिमांड ज्यादा है ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी ज्यादा बनी रहे, ठीक है, मिट्टी की फर्टिलिटी ज्यादा बनी रहे और क्रॉप्स ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाए। दैट्स व्हाई हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही, इस पॉइंट में सही लिखा है कि मोस्टली इट इज कंसंट्रेटेड टू द फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, बिकॉज यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर दैट इंक्रीजेस द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल which helps in the better growth of the crops, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा देखो there are 57 fertilizer units manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers। देखो आप देख सकते हो कहते हमारे देश में काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अलग अलग तरह के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को बनाने में का काम करती है, ठीक है। क्लियर कर रहा हूं। कहते हैं हमारे देश में 57 से भी ज्यादा फर्टिलाइजर यूनिट है, मोर देन 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स इन इंडिया आर मैन्युफैक्चरिंग द various types of nitrogenous fertilizers, ठीक है। अलग अलग तरह, देखो आप देख सकते हो हमारी ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादातर क्या कर रही है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया और इस तरह के और अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स को बनाने का काम कर रही है, बिकॉज इंडिया में ज्यादा डिमांड इसी तरह के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स अगेन मैं बता रहा हूं ये सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाने में मदद करते हैं और नाइट्रोजन आगे क्रॉप्स को बेटर ग्रो करने में ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो क्रॉप्स को चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है और वो अलग अलग तरह के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाती है। उसके अलावा 29 are for urea and 9 for the producing of ammonium sulfate as a byproduct, ठीक है। इसमें से देखो कहते हैं 29 या उससे ज्यादा जो है वो क्या बना रही है आपका यूरिया। 29 are for urea and 9 for producing ammonium sulfate as a byproduct and 68 other small units that are producing single superphosphate, ठीक है। 29 जो है वो यूरिया बना रही है अकेला, ठीक है, और 9 others are producing ammonium sulfate. 9 others are producing ammonium sulfate. सल्फेट, ठीक है जी। ये आ रहा है पूरा, इसमें कट तो नहीं रहा। और प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट, ओके।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और ऐसी हैं, 68 अदर स्मॉल यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूसिंग सुपर फॉस्फेट्स एंड 68 others are producing superphosphates, are producing superphosphates। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो बेटा, देखो एक टर्म आ रही है इसमें ना, एक टर्म आ रही है बेटा बाय प्रोडक्ट की। देखो आप देख सकते हो 29 फॉर यूरिया एंड 9 फॉर अमोनियम सल्फेट एज ए बाय प्रोडक्ट। 9 जो है ये अदर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को एज ए बाय प्रोडक्ट यूज करती है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो किसी और चीज में मिलाकर कुछ और बना सकता। जैसे मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट, कोई एक मतलब कि केमिकल लिया, ठीक है, एक केमिकल लिया, उसमें मैंने कोई और दूसरा केमिकल ऐड किया, ठीक है, जिससे कुछ नया बना। तो वो जो दूसरा केमिकल मैंने ऐड किया ना ताकि कुछ नया बने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द बाय प्रोडक्ट। तो अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन भी हमारे देश में काफी ज्यादा होता है, इसको बाय प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे ताकि हम लोग इसको यूज करके और ज्यादा नाइट्रोजन और ज्यादा कई तरह के किस्म के नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बना सके। तो ये अमोनियम सल्फेट क्या यूज हो रहा है? एज ए बाय प्रोडक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट। मतलब कि इसको यूज करके हम लोग और कई तरह के अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है बना रहे हैं। उसके अलावा कई तरह के ऐसे भी मतलब हमारे जो फॉस्फेट्स हैं जो बनाया जा रहे हैं, जिनको हम लोग सुपर फॉस्फेट्स बोलते हैं। बहुत सारे हमारे इस तरह के जो फर्टिलाइजर हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट्स क्या होते हैं? जिसमें कई तरह के मतलब कि ऑलरेडी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें कई सारी क्वालिटीज होती हैं और ऑलरेडी काफी सारे फर्टिलाइजर्स को मिलाकर बने होते हैं। तो जब कई सारी चीजों के मिक्सचर से बने हों और उसमें काफी सारी क्वालिटीज भी हों, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं योर सुपर फॉस्फेट्स। ठीक है, तो तीन चीजें होगी। एक तो हो गए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसमें से यूरिया एक है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा अमोनियम सल्फेट, ये क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है जिसको यूज करके हम लोग और कई तरह के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या, हम कई तरह के सुपर फॉस्फेट्स भी बनाते हैं। वो ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर बनाए गए होते हैं और कई सारी क्वालिटीज भी बीच में होती हैं, जिससे क्या होता है कि क्रॉप्स को ज्यादा बेटर करने में मदद मिलती है और भी कई तरह की बढ़िया से ज्यादा क्वालिटी की क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर पाते हैं। आपको पता होगा हम लोग कई तरह के HYV सीड्स उगाते हैं इस देश में, ठीक है ना। HYV सीड्स ऐसे ही नहीं उग जाते, उसके लिए कई तरह के केमिकल्स हमें मिट्टी में डालने पड़ते हैं। तो वो सारे के सारे केमिकल्स को हम लोग जो मिट्टी में डालते हैं, फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डालते हैं, तब जाकर हमारे HYV सीड्स बनते हैं। तो HYV सीड्स को आमतौर पर सुपर फॉस्फेट्स और इस तरह की चीजें और ये इन सब चीजों को मिट्टी में डालने के बाद उगाते हैं। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो चाहे वो सुपर फॉस्फेट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें कोई डाउट्स हो तो मेरे को आप लोग उसमें सेंड कर देना प्लीज। आपके जो YouTube का जो होता है ना आपका कमेंट सेक्शन, उस पर भेज देना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेज सकते हो। अच्छा, उसके बाद बेटा एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये नाम टिक कर लो, अंडर द फर्टिलाइजर, ये नाम टिक कर लो, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्लीज अंडरलाइन द नेम। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, साइड, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में लिखने की जगह नहीं, इधर साइड में लिख रहा हूँ। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम अंडरलाइन कर दो प्लीज, इंपॉर्टेंट है नाम, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे देश की एक सरकारी कंपनी है जो कई तरह के फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने का काम करती है। ठीक है जी। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala contribute towards the half of the fertilizer production. ठीक है ना, आपको बेटा याद ही होगा सभी को ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ये आपने 9th में पढ़ा है और हमने 10th में भी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में ना इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काफी बड़ा योगदान है। अगर हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेटर तरीके से ग्रो ना करवाते तो कभी भी हम लोग सुपर फॉस्फेट्स जैसी चीजें ना बना पाते, और अगर ये सुपर फॉस्फेट जैसी चीजें ना बनती, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जैसी चीजें ना बनती, तो कभी भी हम लोग HYV सीड्स ना उगा पाते, और HYV सीड्स ना उगा पाते तो कभी ग्रीन रेवोल्यूशन भी ना आता। ठीक है ना, तो हमारे देश में दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अलग तरह के बाय प्रोडक्ट्स और अलग अलग तरह के सुपर फॉस्फेट्स को मैन्युफैक्चर किया, तब जाके हम लोग मिट्टी में से अलग अलग तरह के HOV सीड्स को उगा पाए और तब जाकर हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ग्रो की और तब जाके हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन लिख लो, राइट द क्वेश्चन प्लीज। हाउ कैन यू से दैट fertilizer industry in India, how can you say that fertilizer industry in India is related to the green revolution in India, is related to the green revolution in India? Explain. Question for 3 marks. ठीक है, क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो दैट मींस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की वजह से ही हम लोग इतने काबिल बन पाए कि हमने अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए, इनका इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर हमने कई तरह के ये सारे अलग अलग तरह के सुपर फॉस्फेट्स और बाय प्रोडक्ट्स वगैरह बनाकर अपनी HYV सीड्स को उगाया और HYV सीड्स से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, तब जाके हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्लियर? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, तो हमारे देश में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिला और आज इंडिया में काफी सारे फर्टिलाइजर जो है बनाए जाते हैं, काफी सारे फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बट स्टिल मैं वही बता रहा हूं, स्टिल पोटाश इज स्टिल नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसको हम लोगों को अभी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज इसके रिजर्व्स इतने हमारे देश में नहीं है और इसको बनाना मतलब कि उतना भी आसान नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमें ज्यादातर मतलब काफी खर्चीला भी है, तो हमें इसीलिए इसको ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द फॉरेन नेशंस। ठीक है, लेकिन उसके अलावा काफी सारे फर्टिलाइजर्स को हम लोग अपने देश में बनाते हैं और यूज भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर द एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर बच्चों? और इसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम टिक कर लो प्लीज, अंडर द नेम ऑफ द स्टेट्स। मैं ऊपर से रख रहा हूं, अंडरलाइन द नेम प्लीज ऑफ द स्टेट्स। का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 मार्क्स के लिए। नेम द इंपॉर्टेंट स्टेट्स that are the large producers of fertilizers in India. Name the important states that are the large producers of fertilizer industry in India. ठीक है, कोई भी 3-4 के नाम लिख सकते हो आप लोग, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब। ठीक है, any 3-4 गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब। ठीक है, इन सभी स्टेट्स के नाम आप लोग लिख सकते हो और भी कई नाम दिए हैं आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम दिए आप लोग टिक कर सकते हो। महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो दिस वाज द टॉपिक अबाउट टुडेज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी योर सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री का इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और मैं दोबारा बता दूं, ये टॉपिक सारों ने लर्न करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर के ये जो पिछले टॉपिक्स मैंने पहले कटवाए थे, ये सारे करने हैं ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोग कर सको। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाल दिया हुआ है, वो सभी ने करना है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और सीमेंट और आपका केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, ये आपने सभी ने करना है। मेरे फेसबुक उसमें देख लेना आप लोग जाके, चैनल पर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर होगा, उस पर देख लेना। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और नेक्स्ट जो सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी सबने करना है। ठीक है, याद से सबने करना है, इसके क्वेश्चंस भी कर लेना, टेक्स्ट बुक के भी और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, तो सभी ने लर्न करना है। क्लियर? तो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री वी शैल डिस्कस सीमेंट इंडस्ट्री। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स भेज देना, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरीज, 100% आई विल आंसर टू योर क्वेरीज। तो प्लीज सेंड योर डाउट्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।